Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is an interactive session for the class Professional Practice, Section A. So far, nobody has joined. It's only me. No students have joined, but I'll still make a recording of it. The discussion that we are going to perform is a little bit away from the prescribed curriculum, but it is a need that we understand that the students have to write and speak in a specific terms. So I'll be conveying all the possible methods by means of what the students can become specific in their oration as well as in their writing. There was a big gap. There were lots of mistakes found while checking the exams of the students. There must be some communication gap as they were required to write answers in terms of their own opinion about concepts, but they ended up with the writing of definitions and copy pasted material, irrelevant copy pasted material from unknown sources from the internet. However, there were only a few who had been targeted, who have been targeting their discussion as the questions demanded. Now, in this particular discussion, it might be two lectures. This one lecture and another lecture, we'll be seeing how one can become specific. But before trying to understand the word specific, there are a lot of other things that need to be understood. First thing that we need to understand is the word miscommunication. Although we already had the discussion on the contemporary issue of communication, but we did not talk much about the opposite of communication, which is miscommunication. Miscommunication is a kind of a failed communication. ऐसी communication जिसमें communication का असल मकसद पूरा ही ना हो सके, आप उसे miscommunication ही कहेंगे. यानी communication तो हुई लेकिन उसका meaning convey नहीं हुआ. So miscommunication को हम कई मुख्तलिफ तरीके से भी express कर सकते हैं, like it's a failure to convey a message properly. जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे थे, you failed in conveying that. That means the person who is sending the communication, they were unable or they were failing in the process of conveying the message properly. Another reason could be that the actual meaning of the message could not be conveyed. There was a failure to convey the actual meaning of the message in a communication. And the third possibility is that the people who are receiving the communication, the recipients of the communication, they were unable to understand the actual meaning within the message. Now, whatever the case may be, miscommunication on the part of the sender and on the part of the recipient, there are all sorts of failures that can happen at both ends, but we are not actually concerned with that. We are actually concerned as to the causes why this happened. Now, there could be many reasons for miscommunication, and it might not be possible to cover or understand all of those reasons in one little duration sitting. So I'll stick myself to the most hit upon reasons regarding miscommunication. First of all, lack of context. The people who are communicating, sometimes they miss the actual context of the discussion. If your communication is a part of a bigger scenario or a bigger discussion, or might be coming at the end of the bigger scenario, then the people might have this
forgotten maybe the context of this discussion, or they might have distracted themselves from the actual context. Now, I observed this in the examination, recent examination midterm, और उसमें मैंने ये देखा कि हर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स वाले क्वेश्चंस में पहले एक सिनेरियो बिल्ड किया जाता है और फिर उस सिनेरियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है. नाउ व्हाट हैपेंड, सिनेरियो तो बिल्कुल सही बिल्ड किया गया, लोगों को बताया गया कि आपने फला एक चीज पढ़ी है, लाइक यू हैव स्टडीड अ कंटेम्पररी इशू ऑफ प्राइवेसी. नाउ रिगार्डिंग द प्राइवेसी, आपके ओपिनियन में फिजिकल प्राइवेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नाउ व्हाट हैपेंड, जो सिनेरियो उसमें बिल्ड किया गया था, कंटेक्स्ट जो बिल्ड किया गया था, लोगों ने उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी या उसको रीड ही नहीं किया या उसको समझने की कोशिश नहीं की. So what they started to do, they started writing the definitions of physical privacy and informational privacy. अब जो सिनेरियो है क्वेश्चन का वो कुछ और कंटेक्स्ट बिल्ड कर रहा है और कंटेक्स्ट में ऑलरेडी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं. तो अब आपसे ये डिमांड की जा रही थी कि आप डेफिनेशंस नहीं देंगे बल्कि अपना ओपिनियन बताएंगे. आपके ख्याल में किसी एक टाइप की प्राइवेसी किसी दूसरी टाइप की प्राइवेसी से क्यों प्रेफर्ड है, उसकी प्रेफरेंस उससे क्यों ज्यादा? इट माइट बी कि आपका प्रेफरेंस गलत हो लेकिन उसकी रीजनिंग सही हो, वो आपने डिस्क्राइब करनी है. सो व्हाट हैपन कि लोग, मेन जो डिस्कशन चल रही है, जो मेन एक ऑब्जेक्टिव कवर हो रहा है, वो अपने सेंटेंस में उसके कंटेक्स्ट को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं. एजम्पशंस भी होती हैं. एजम्पशंस का मतलब है कि लोग किसी भी किस्म की, लोग जब कोई डिस्कशन करते हैं तो वो अगले की पूरी बात नहीं सुनते, उसके सवाल को अपनी एजम्पशंस की बेस पे जज करते हैं. यानी जो डिस्कशन चल रही थी, सिनेरियो बिल्ड हो रहा था, उसके मुतालिक उसकी वर्डिंग को समझने की बजाय वो अपनी एजम्पशंस लेके चलते हैं और फिर जो सवाल पूछा जाता है उसे भी वो कॉन्टेक्स्ट या प्री टेक्स्ट की रोशनी में नहीं बल्कि अपनी एजम्पशंस की रोशनी में उसको गलत तरीके से आंसर कर देते हैं. द सेम थिंग हैपेंस. अब जिस तरह हमने डिस्कशन की थी कंटेम्पररी इशू प्राइवेसी पे, तो मैंने आपको बताया था प्राइवेसी वो चीज है जो बहुत जल्दी वायलेट हो जाती है, अनलाइक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो कि इतनी इजीली वायलेट नहीं हो सकती. प्राइवेसी फौरन वायलेट हो जाती है. तो कॉन्टेक्स्ट उसका हमने बिल्ड किया कि प्राइवेसी एक ऐसा राइट है, किसी भी शख्स का एक ऐसा बॉर्न राइट है जिसमें वो चाहेगा कि उसे कोई ऑब्जर्व ना करे या उसे कोई बॉदर ना करे. अब इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा गया है कि जी व्हाट अबाउट यू, जाए assumptions लेके चलते हैं, not of privacy, they take the assumptions of secrecy or maybe safety and security, which are different. Safety, security, ये दोनों चीजें प्राइवेसी से बहुत डिफरेंट है. और मैंने ये कहा भी था कि जी प्राइवेसी फौरन वायलेट हो जाती है जैसे ही कोई किसी को ऑब्जर्व करता है या उसे किसी किस्म की बॉदरेशन करता है, उसको बॉदर करता है, तो प्राइवेसी तो फौरन वायलेट हो जाती है. प्राइवेसी इज गॉन. तो प्राइवेसी ये नहीं है कि आप चीजों को लॉक में रखें. दैट इज समथिंग एल्स. दैट इज सेफ्टी, दैट इज सिक्योरिटी. प्राइवेसी होती ही उस चीज की है जो कि लॉक में ना हो, सामने हो, और वायलेशन भी उसी की ही होती है. आप ये नहीं कह सकते कि आपने किसी चीज को दीवारों और मकान के अंदर कहीं 7 पर्दों में या 7 तालों में रखा हुआ है तो नाउ इट्स प्राइवेट. प्राइवेट तो वो पहले भी है, लेकिन अब उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम टच नहीं करते जो प्राइवेसी होल्ड करता है, क्योंकि अब सिरे से ही किसी के पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो आपकी उस सिक्योर शुदा चीज को ऑब्जर्व करे या उसे बॉदर करे, क्योंकि उसके पास तो अब कोई चांसेस नहीं है. चांसेस तब भी होंगी जब कोई चीज एक्सपोज्ड होगी
लेकिन फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे लाइक योरसेल्फ, आप इन पर्सन कहीं पे बैठे हैं किसी पार्क में या किसी ऑफिस में या किसी भी जगह, तो आपकी प्राइवेसी उसी वक्त शुरू होती है जब आप सोच रहे हैं कि आपको कोई बॉदर ना करे, और वो उसी वक्त वायलेट हो जाती है जैसे ही आपकी कोई सोच के बरखिलाफ आपको कोई ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, या आपको कोई आके फिजिकली कोई बॉदर करता है, आपसे कुछ पूछना चाहता है, एंड यू डोंट वांट, आप नहीं चाहते कि कोई आपको इस तरह से बॉदर करे। द मोमेंट दैट हैपेंस, योर प्राइवेसी इज गॉन। तो अब लोग assumptions ये लेके चलना शुरू हो गए कि जनाब प्राइवेसी की बात हो रही है तो एक्चुअली सीक्रेसी की हो रही है, ये सेफ्टी की हो रही है, जबकि मैंने वाज़ेह तौर पे इन दोनों का कंटेक्स्ट अलग-अलग बिल्ड किया था। और खास तौर पे जब मैंने कहा कि फिजिकल प्राइवेसी और इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी, द मोमेंट आई सेड दैट, तो आपकी assumptions इसी तरफ जानी चाहिए थी, प्राइवेसी की तरफ, सेफ्टी और सिक्योरिटी की तरफ नहीं जानी चाहिए थी। अब तीसरे नंबर पे जो मिसकम्युनिकेशन का एक रीजन, ये कॉज हो सकता है, वो है एम्बिग्विटीज, और उसी के साथ वेगनेसेस और इनकंसिस्टेंसीज। एम्बिग्विटी का मतलब है that you, whenever you speak a word or a sentence, or even if you write a sentence or a word, then somehow the meaning that you wanted to convey is not being conveyed. There is an ambiguity in that. It's not clear. Then there could be another reason, which is mismatch in parties, यानी जो communicating parties है उनका आपस में किसी भी किस्म का कोई मिसमैच है। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि जब कोई पढ़ा लिखा आदमी, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी जब किसी अनपढ़ आदमी से कम्युनिकेट करता है, तो अक्सर औकात सेम जुबान जानने के बावजूद भी दोनों में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। उसकी वजह कई चीजें हो सकती हैं। एक तो उनका इल्म है जो आपस में मैच नहीं करता, बोलने का एक्सेंट या बोलने का स्टाइल हो सकता है जो आपस में मैच नहीं करता, इस वजह से वो मीनिंग कन्वे नहीं हो पाता, कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल, लेट मी कोट समथिंग विच विल बी थोड़ी सी अनऑफिशियल सी एग्जांपल है, लेकिन आपको बात समझ आएगी क्योंकि अनऑफिशियल ही का तो जिक्र हो रहा है इसमें। लाइक चंद एक दिन पहले एक हमारे घर पे कुछ थोड़ा सा रिपेयर वर्क था जो हमने करवाना था, तो छत जो सीलिंग होती है उस पे, तो जो वहां पे शख्स काम कर रहा था, एक मिस्त्री साहब या कोई मजदूर टाइप के होंगे, उन्होंने मुझे कहा कि साहब आपकी फार सीलिंग सही नहीं है, आपकी फार सीलिंग सही नहीं है। आपने भी ये लफ्ज पहले शायद कभी नहीं सुना होगा, मैंने तो बिल्कुल नहीं सुना था। आई वॉज ट्राइंग टू जज के जी कोई टेक्निकल वर्ड है तो मे बी किसी टेक्निकल वोकेबलरी या किसी गूगल सोर्स से, अनफॉर्चुनेटली कहीं पे भी ये लफ्ज नहीं मिल सका क्योंकि वो लफ्ज है ही नहीं। वहां पे तो वो लफ्ज होते हैं ना जो जनरल वोकेबलरी में होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो लोग आम तबका है उनकी वोकेबलरी बहुत ही डिफरेंट है, वो शायद कहीं पे आपको डॉक्यूमेंटेड ना मिलेगी। तो वो जो कहना चाह रहा था फार सीलिंग, इसका मतलब ये हो सकता था, जो बाद में मुझे किसी दूसरे शख्स ने बताया, वो कहना चाह रहा था कि जी आपकी छत में जो फॉल्स सीलिंग है, कुछ लोग कहते हैं जी फॉल सीलिंग और कुछ लोग उसे कहते हैं फॉल्स सीलिंग, दोनों चीजें ठीक हैं, लेकिन अब ये है पढ़े लिखे आदमी की अप्रोच, वो जो वर्ड्स बोल रहा है वो पूरे टेक्निकल हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं, ये वोकेबलरी में से हैं, चाहे वो टेक्निकल वोकेबलरी क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन लफ्जों को और उनके मीनिंग को तो लिखा हुआ ढूंढा जा सकता है, लेकिन जो आम आदमी है वो अपने अनपढ़ अंदाज में उस पढ़े लिखे लोगों के लफ्ज को जब बोलेगा तो वो शायद उसे कभी प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं कर सकेगा, शायद उसके ज़हन में उनका मीनिंग भी डिफरेंट होगा। तो वो फॉल सीलिंग से फॉर सीलिंग, और इस तरह आप सुनते हैं जिस तरह सर्टिफिकेट होता है, तो ये इस तरह के लोग जो हैं वो उसे कहते हैं जी सर्टिफिकेट।
अब इस तरह की कई एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। लेकिन यहां से जो वाजे हो रही है वो है मिसमैच। इन लोगों के अंदर कम्युनिकेशन पार्टीज में कोई मिसमैच है मीनिंग का या लैंग्वेज का। Just take a sip of water. अब एक रीजन और भी हो सकती है मिसकम्युनिकेशन से रिलेटेड। भी हो सकती है कि जो कम्युनिकेशन की जा रही है, चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन है चाहे वो ओरल है, बोली हुई, उसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है कि इट्स टू मच ओवरलोडेड विद वर्ड्स। यानी जो लफ्ज बोले जा रहे हैं या लिख दिए गए हैं वो इतने ज्यादा हैं कि, या जुमले इतने ज्यादा हैं कि जितनी देर में जुमले मुकम्मल होते हैं उतनी देर में असल मीनिंग इंसान भूल चुका होता है। अगर कोई शख्स 10 या 12 सेकंड में 4 या 5 जुमले बोल गुजरे तो वो उस टाइम फ्रेम के लिए बहुत ओवरलोडेड हो जाएगा। बोलने वाला तो बोल के फारिग हो जाएगा, लेकिन जो शख्स सुन रहा है जैसे ही वो पहले सेंटेंस के बाद दूसरे सेंटेंस के मीनिंग पे आएगा तो वो पहले सेंटेंस का मीनिंग भूल चुका होगा, पर्पस ही भूल चुका होगा, क्योंकि वो सेंटेंसेस उसके नहीं है, किसी और के हैं। तो उसे एक टाइम तो चाहिए ना उनको ग्रैस्प करने का, उनको समझने का। तो अगर टाइम लिमिटेड है, वर्ड्स ज्यादा है, या स्पेस लिमिटेड है, लिखने की स्पेस लिमिटेड है, और उसमें बहुत ज्यादा वर्ड्स या इमेजेस को ओवरलैप कर दिया गया है एक दूसरे पे, तो अब उनमें से किसी एक की भी नहीं समझ आ सकेगी। इसको आप कहते हैं ओवरलोडेड, हैवीली ओवरलोडेड कम्युनिकेशन में स्मॉल टाइम स्पेस में ज्यादा वर्ड्स या सेंटेंसेस बोल दिए जाते हैं, या कम स्पेस के अंदर राइटिंग इतनी ज्यादा कर दी जाती है वर्ड्स की, या इतनी ज्यादा पिक्चर्स इमेजेस को ड्रॉ कर दिया जाता है कि किसी एक का भी मतलब समझते समझते जब आप दूसरे पे जाते हैं तो पहले का मतलब आपके जहन से खत्म हो चुका होता है। तो इसको आप कहते हैं ओवरलोडेड कम्युनिकेशन। ये भी एक बहुत बड़ा जरिया है मिसकम्युनिकेशन एरर्स का। नाउ वी विल टॉक अबाउट द वर्ड्स जो कि शुरू में मैंने आपके सामने हाईलाइट किए थे, लाइक एम्बिग्विटीज। हम फोकस अब इसी पे ही करेंगे। पहला लफ्ज है एम्बिग्विटी, जिस पे हमने फोकस करना है। तो इन द मीन टाइम कुछ लोगों ने तो ज्वाइन किया है, पता नहीं साथ में सुन भी रहे हैं कि नहीं। 7 कुरैशी हैं और मोहम्मद साकिब है, तो होपफुली आप लेक्चर को सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। ओके, व्हाट इज एम्बिग्विटी? एम्बिग्विटी को समझना है। एम्बिग्विटी के लिए उर्दू में कोई पर्टिकुलर वर्ड मुझे नहीं मिल सका, लेकिन जो करीब तरीन इसकी मीनिंग है उर्दू में, उसमें आप कह सकते हैं तजब्जुब। तजब्जुब ये हो सकता है कि इंसान डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि वो कोई एक लफ्ज यूज करे या कोई दूसरा लफ्ज यूज करे, या ये हो सकता है कि किसी एक वर्ड का एक खास मीनिंग है और एक दूसरा मीनिंग भी है, तो कौन सा मीनिंग लिया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है जिसने ये लफ्ज बोला है या लिखा है वो कोई और शख्स है और पढ़ने वाला कोई और है। ऐसा ही होता है। तो अब वो एम्बिग्विटी ये है कि यू आर नॉट क्लियर कि ये वर्ड है कौन सा, या फिर इसका कौन सा मतलब लिया जा रहा है। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल्स भी देता हूँ। The word might have multiple meanings and it becomes difficult to understand which meaning is intended right now. अब इससे क्या होता है, अगर ऐसे कोई एम्बिगुअस वर्ड्स यूज किए जाएं तो जो सेंटेंस है या जो पूरी की पूरी एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट है उसके मीनिंग ही टोटली अनक्लियर हो जाते हैं, या डिफरेंट हो जाते हैं, या अनक्लियर होते हैं, समझ ही नहीं आती क्या बात कही जा रही है। कुछ वर्ड्स की एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा।
अब ये एग्जाम्पल्स हम पाकिस्तान जैसे माशरे में रहते हुए ये एग्जाम्पल्स बहुत क्लिक करती हैं, लेकिन मे बी अमेरिकन और ब्रिटिश जो इंग्लिश उनकी मदर लैंग्वेज भी है, कैनेडियंस हैं या फिर ऑस्ट्रेलियंस हैं या न्यूजीलैंड के लोग हैं जिनकी मदर टंग इंग्लिश से ही शुरू होती है, तो उनके लिए शायद ये इतनी बड़ी एम्बिग्विटी ना हो। बट देन हमने अपनी एम्बिग्विटीज की बात करनी है, इस माशरे में इस कल्चर में रहते हुए लोगों की एम्बिग्विटीज। जो वो लोग हैं अमेरिकन हैं और जो ब्रिटिश हैं, वो एक दूसरे की एक्सेंट को, एक्सप्रेशंस को बड़ी हद तक विद इन द सेम कंट्री और द रीजन बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन हम उनकी एक्सप्रेशंस को, उनके एक्सेंट को फौरी तौर पे जो आम आदमी है, आम किस्म की स्कूलिंग या कॉलेज से जो लोग पढ़ते हैं, वो उसे इतनी क्लियरली नहीं समझ पाते। तो वो लोग जो कि अमेरिका में रहते हैं या अमेरिका में अक्सर फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं, उनके लिए तो ये कोई बिग डील नहीं होगी, इसलिए कि हर लफ्ज की एक एक्सेंट और एक मूड है या एक टाइम जस्टिफिकेशन है कि किस वक्त वो लफ्ज बोला जाता है। तो उस हिसाब से तो उनको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होती, उन्हें कभी एम्बिग्विटी नहीं होती। एम्बिग्विटी होती है हम जैसे लोगों को कि जो यहाँ से अपनी जुबान में बात करने के आदी हैं, अपनी जुबान को शायद अच्छा समझते हो, अच्छे तरीके से समझते हो, लेकिन किसी दूसरे की लैंग्वेज, खासतौर पे जो इंग्लिश है, जो बोलने वाले हैं वो भी हमारे लोग हैं और सुनने वाले भी हमारे लोग हैं, तो उस वक्त ये जो एम्बिग्विटी ऑफ वर्ड्स है बहुत ज्यादा पैदा होती है। अब एक एग्जाम्पल है, एक सेट ऑफ वर्ड्स है जो शुरू में ही लिखा हुआ है। ये सेट ऑफ वर्ड्स आमतौर पे हमारे लोग एक ही एक्सेंट में सारे वर्ड्स बोलते हैं, यानी एक किस्म का स्पेलिंग वाला वर्ड और उससे मिलता जुलता साउंड एक्स वाला दूसरे स्पेलिंग वाला वर्ड। एग्जाम्पल है हेयर, HEIR, बाल, और दूसरा है HARE, हेयर। हमारे लोग फिर उसी तरह से ही बोल रहे हैं, हेयर हेयर। शायद अमेरिकन का एक्सेंट डिफरेंट हो, ब्रिटिश का एक्सेंट बता देता होगी जी। अब ब्रिटिश जो है वो अक्सर एज को बिल्कुल ही साइलेंट कर देते हैं, मसलन वो कहते हैं जी एयर, लेकिन फिर वो एक और लफ्ज के साथ एम्बिग्विटी हो जाएगी, AIR, हवा। लेकिन हमें फिर उनकी जुबान को उनके मुताबिक समझना होगा, जो कि हमारे लिए यहाँ पे मुश्किल है। लेकिन मुश्किल उससे भी ज्यादा ये है कि हमारे ही लोग, हमारे भाई जो इस कल्चर में, इस जगह से हमारे ही साथ उनका ताल्लुक है, जब वो इंग्लिश बोलते हैं तो वो भी अहले ज़बान नहीं है, हम भी नहीं, तो हम बोले हुए को और जो बोल के सुना जा रहा है उसको मैच नहीं कर पाते। तो वहां पे इस एग्जाम्पल को आप फौरन समझ जाएंगे, हेयर 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 हेयर। चार मुख्तलिफ स्पेलिंग्स हैं, साउंड तकरीबन सेम है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन हमारे लोगों का चारों में, और अगर इसके अलावा भी इससे मिलते जुलते हैं, तो हमारे लोगों का प्रोनाउंसिएशन उसे एक जैसे ही बना देता है और वो एम्बिग्विटीज बन जाती है। जबकि हेयर, HEIR, हेयर, अगर लिखा हो तो शायद ज्यादा इजीली समझ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग अगर बोलने में थोड़े से इनकॉम्पिटेंट हैं, तो लिखने और लिखे हुए को पढ़ने में भी बड़ी हद तक इनकॉम्पिटेंट हैं, क्योंकि वो ये नहीं शायद उनको होगा जहन में कि जी HAIR वाला लफ्ज बालों के लिए है या HARE वाला है। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ जो यहाँ लिखी नहीं हुई, लाइक लफ्ज है मेल, और ये भी एम्बिग्विटी पैदा करता है क्योंकि सेम साउंड एक्स के साथ दो लफ्ज हैं, MEIL, मेल, डाक, जो खत वगैरह, ये जैसा ईमेल है उसमें भी तो मेल का लफ्ज है ना, MEIL, यानी कोई डाक या कोई लेटर जो भेजा जाता है उसको मेल कहते हैं। और एक लफ्ज है मेल, MALE, मर्द। तो अब बड़ी हद तक
दोनों का साउंडेक्स हमारे हिसाब से सेम है, मेल मेल। अब आई डोंट नो आप समझ पाए कि नहीं, मैंने पहले कौन सा मेल बोला है, MEIL वाला या MALE वाला, तो मैं ही जानता हूं, लेकिन अब आप नहीं समझ पाए, दैट मीन्स कि आपको कम्युनिकेट करते करते एम्बिग्विटी बन गई। और हमारे लोगों के साथ लिखते हुए भी प्रॉब्लम है, अक्सर जो लोग हैं खासतौर पे स्टूडेंट्स, वो उन्होंने कहीं ना कहीं दोनों के स्पेलिंग पढ़े हैं, MAIL MALE, लेकिन वो लिखते वक्त फिर भूल जाते हैं या मिस्टेक कर देते हैं। अब कई दफा मैंने कुछ ऐसा प्रोफेशनल प्रैक्टिस के पेपर में पेपर जब चेक किए तो लिखा हुआ मिला ब्लैकमेल। अच्छा, ब्लैकमेल भी बड़ी एक एम्बिगुअस एक एक्सप्रेशन है, ब्लैकमेल। ये आप अमेरिका में बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे कि जी काला आदमी, ये जो हबशी निग्रोज होते हैं, ब्लैकमेल नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका में कोई कहता है ब्लैकमेल, तेजी से वो बोले, तो उसका मतलब ये होगा कि ये जो ब्लैकमेल जुर्म होता है, किसी को ब्लैकमेल करना। लेकिन हमारे लोग फिर भी बोलते हुए भी एम्बिग्विटीज पैदा कर देते हैं, लिखते हुए भी। लाइक मैंने जो साइबर क्राइम का जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस में टॉपिक हमारे होता है, उसमें जब पेपर में कोई आंसर लिखते हैं तो वो लिख देते हैं जी ब्लैकमेल। अब ब्लैकमेल जुर्म नहीं है, ब्लैकमेल, ब्लैक MALE मेल, लेकिन वो कहना चाहते हैं जी ब्लैकमेल, तो वो इकट्ठा लिखें या अलहदा लिखें, वो लिख देते हैं जी ब्लैक मेल MALE। जबकि ब्लैकमेल क्या है, BLACKMAIL, ब्लैकमेल जो क्राइम है। अब ये एग्जाम्पल अगर आप समझें तो इस तरह की कई एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ लिखी भी नहीं। मसलन आप कहते हैं जी फेयर, जिस तरह ये हेयर था ना, इसी तरह से फेयर में भी एम्बिग्विटी होती है। आप कहते हैं FAIR, फेयर, जिसका मतलब हो सकता है ईमानदारी, इंसाफ, अदल। और फेयर का लफ्ज जो है वो कलर के साथ भी इस्तेमाल होता है, फेयर कलर यानी अच्छा कलर, साफ सुथरा सा कलर। फेयर का लफ्ज जो है वो एक और भी FARE, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ये लफ्ज के जी किराया कितना है। आप बस में ट्रेवल करते हैं या ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो आप पे करते हैं किराया, वो FARE। लाइक बस का किराया जी, वो मेट्रो का मिनिमम जो है वो 20 रुपीज है, तो वो लिखा होगा फेयर FARE 20। अच्छा, एक जो लफ्ज है FAIR, उसका मतलब एक तो यही बनता है कि जी साफ सुथरा या अदल, लेकिन FAIR का एक मतलब और भी होता है, जिस तरह मेला लगा हुआ है ना, वो मेले को भी इंग्लिश में फेयर कहते हैं। सो अमेरिकन या ब्रिटिश या ऑस्ट्रेलियंस या न्यूजीलैंड के लोग, और बड़ी हद तक हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इन जगहों से होके आते हैं, तो वो अपनी कम्युनिकेशन में बहुत क्लियर होते हैं, वो एम्बिग्विटीज नहीं होती। लाइक आई डोंट फील एनी एम्बिग्विटी जब कोई अमेरिकन एक्सेंट में मेरे साथ बात कर रहा हो, तो आई एम इजीली एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एक्सेंट, द वर्ड्स दैट माइट बी एम्बिग्वियस टू अदर्स। लेकिन शायद बोलते हुए मैं, वो चूंकि मेरी बोलने की रवानी नहीं है, तो शायद बोलते हुए मेरी एक्सेंट अमेरिकन नहीं होगी। वैसे यहाँ पे कोशिश सारे ही कर रहे होते हैं कि जी अमेरिकन एक्सेंट में हो, लेकिन आई कैन चैलेंज यू कि जो ब्रिटिश एक्सेंट है वो बहुत ही कम लोगों का होता है। शायद वो लोग जो कि पाकिस्तान से गए बहुत छोटी उम्र में और बहुत बड़ी उम्र में वो पाकिस्तान वापस आते हैं, तो उनका एक्सेंट ब्रिटिश होगा। बट अदर देन दैट, नॉर्मली ज्यादा एक्सेंट जो है वो अमेरिकन चल रहा होता है, क्योंकि मूवीज वगैरह की वजह से। अब इसमें आप देखें देन और दैन, ये दो स्पेलिंग डिफरेंट भी हैं और प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है। देन THEN, दैन THAN, लेकिन हमारे लोग एक ही तरह से इनको
बोल भी रहे होते हैं और लिख भी रहे होते हैं, यानी जहां पे देन लिखना है वहां पे देन लिखा होता है, और जहां देन लिखना होता है वहां लिखा होता है देन। दोनों में फर्क क्या है? आप कहते हैं देन, तब, इट वॉज रेनिंग देन, यानी तब बारिश हो रही थी, THEN। और देन आप यूज करते हैं कंपैरिजंस के लिए, लाइक आप कहते हैं जी समथिंग इज ग्रेटर देन समथिंग, तो आप वहां पे THAN वाला यूज करते हैं। लेकिन हमारे लोग लिखते हुए भी इनमें से मिक्सअप कर देते हैं, कहीं पे देन लिखना था तो देन लिखा होता है, और बोलते हुए भी शायद बोलते हुए उन दोनों को एक ही वो देन देन आई एम सॉरी, इस तरह से मैं वो इमिटेट करके आपको बता रहा हूँ, लेकिन इट हैपेंस आपके इर्द गिर्द ऐसे। एक और एम्बिग्विटी हो सकती है जब किसी एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स बनती हो, लाइक शूट, SHOOT, शूट। शूट का एक मतलब तो ये भी है कि किसी को गोली मार दें, गोली मार दीजिए, शूट, शूट कर दिया। लेकिन शूट का एक मतलब और भी है, शूट का मतलब ये भी है कि कोई किसी की तस्वीर, कैमरे से किसी की तस्वीर बना रहे हैं, कैमरा शूट। और एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं कि जो शूट का लफ्ज है ये समटाइम्स पैराशूट वाला जो लफ्ज है ना उसके शॉर्ट फॉर्म में भी यूज होता है, हालांकि उसमें शूट के स्पेलिंग डिफरेंट हैं, लेकिन जब वो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो शूट के यही स्पेलिंग लिखते हैं, SHOOT। शूट वो भी होता है कि जब खुदा ना खास्ता किसी बिल्डिंग में आग लगे तो वो फैब्रिक या कपड़े के बने हुए स्लाइड्स ओपन हो जाती हैं, जिनको शूट्स कहते हैं, कि लोग जो है शायद चल ना सकें तो वो स्लाइड इजीली करके उस खतरनाक जगह से बाहर आ सकते हैं। ये शूट्स जो है वो आप मूवीज अगर देखें एयर क्रैश वाली, कि जनाब एयर क्रैश होता है तो वो सीढ़ियां तो नहीं होती, तो वो क्या करते हैं जी, वो फैब्रिक या बड़े से कपड़े का वो इन्फ्लेटेड जो है, जिस तरह राफ्ट होती है उस तरह से वो शूट्स निकल आती हैं, और शूट के कई और मतलब भी हैं। अब एक लफ्ज है शॉर्ट, वो भी इसी की एक फॉर्म है, उसमें भी एम्बिग्विटीज हैं, लाइक शॉट का मतलब है जी गोली लग गई, गन शॉट्स, हवा जो वो फायरिंग करते हैं तो उसको गन शॉट्स कहते हैं। और शॉट का मतलब जो है वो तस्वीर कशी भी है कि जी कैमरे के साथ शॉट, आई शॉट दिस पिक्चर यूजिंग द फ्यूजी कैमरा, इस तरह का कोई जुमला आप सुनते हैं। और शॉट का एक मतलब और भी है जो हमारे यहाँ भी अब बहुत इस्तेमाल होता है, बट एक एलीट जो मुआशरा है उसमें होता है, लेकिन कई लोग और भी यूज करते हैं, लाइक आई पर्सनली यूज दिस वर्ड, ये शॉर्ट इंजेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। डॉक्टर्स जो मरीज को एक ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन लगाते हैं सिरिंज, तो उसको भी शॉर्ट कहते हैं। हमारे यहाँ को इतना ज्यादा ये रिवाज नहीं पाया, लेकिन हम हो कुछ पढ़े लिखे लोग या जो लोग बाहर जॉब करके आते हैं या बाहर से होके आते हैं, और हमारे कई डॉक्टर्स भी यहाँ पे खुद ही कहते हैं कि जी हैव अ शॉट, यानी वो टीका लगाना पड़ेगा जी बुखार का। और शॉर्ट जो लफ्ज है ये एक और जगह पे भी इसका मीनिंग है, सेम स्पेलिंग, वो है कि जनाब थोड़ा सा हमारे कल्चर से हटके एग्जाम्पल है, लेकिन बहरहाल एक आपको समझ आनी चाहिए बात। शॉर्ट का लफ्ज वो इस्तेमाल उस वक्त भी करते हैं जब कोई एक ओकेजन पे वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं छोटे से टम्बलर या छोटे से गिलास में, तो उसे भी वो शॉट कहते हैं, क्योंकि वो पूरी डोज नहीं होती, बहुत ज्यादा हैवी डोज नहीं होती, छोटी सी एक ग्लासी, जिस तरह आप देसी जबान में कहेंगे ग्लासी सी होती है, जिसमें वो एक या दो सिप की उसमें वो अल्कोहल ड्रिंक होती है, तो वो दे जस्ट टेक इट इन वन ब्लो, तो उसे वो कहते हैं जी ये शॉट है। अब और कई हो सकते हैं, लेकिन कम से कम ये दो तीन जो वैरायटीज हैं शॉट की, उनसे आप समझ जाते हैं कि हमारा कोई बंदा जब शॉट का लफ्ज बोल रहा होगा, देखिए शॉट का लफ्ज वो भी आ गया ना, क्रिकेट की शॉट, कि जनाब बॉल आई तो उस बैट्समैन ने क्रिकेट से उसको शॉट लगा दी, हिट लगा दी, तो शॉट ही कह रहे होते हैं। और कोई गेम भी होती है जिसमें वो एक बड़ा सा मेटालिक बॉल सा होता है, शॉट पट,
तो आप खुद सोचें कि कई मुख्तलिफ जगहों पे, ये तो चंद एक एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ऐसे कई आपको वर्ड्स मिल जाएंगे which either have a foreign different pronunciation but our local pronunciation is the same, or it might be that the spelling are the same and the accent is very minutely different. तो हमारे लोग फिर उस एक्सेंट में, एक ही एक्सेंट में एक मर्तबा उसका कोई मतलब ले रहे होते हैं, किसी दूसरे वक्त में उसका कोई दूसरा मतलब ले रहे होते हैं. अब इस तरह की you can find a number of words but we'll not stick to that, we'll move on. Ambiguity का मतलब ये सामने आया कि कोई वर्ड बोला जाए, चाहे कोई भी बोल रहा हो, या कोई वर्ड कहीं लिखा जा रहा हो, लिख दिया गया हो, मीनिंग है. जैसे हमने शॉर्ट के कई मीनिंग देख लिए, और हेयर में या फेयर में आपने देखा कि जी स्पेलिंग डिफरेंट है, एक्चुअल एक्सेंट भी डिफरेंट होगा, लेकिन हमारे लोगों का एक्सेंट सेम है. तो दैट इज एम्बिग्विटी. उर्दू में आप कहेंगे भी तज़ब्ज़ुब, यानी कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ फैसला नहीं हो पा रहा कि क्या बोल. या बेजाब्ता है, यानी कोई रेगुलर तरीके से कोई काम नहीं हो रहा. तो इनकंसिस्टेंसी का क्या मतलब? कुछ आप वर्ड्स ऐसे लिख देते हैं सेंटेंस में या बोल देते हैं कि उनका आपस में मीनिंग ही ऑपोजिट है और वो एक दूसरे से एग्री नहीं कर रहे. आप कहें कि जी वो बहुत अच्छा बदमाश है, तो अच्छा और बदमाश का आपस में क्या लिंक बनता है? ये एक दूसरे से वर्ड्स एग्री नहीं करते. अब ये तो एक सीधी सी मिसाल है, लेकिन और भी एग्जांपल्स हैं. तो समटाइम्स ये भी होता है कि आप जो सेंटेंस बोलते हैं या सुनते हैं किसी से, या आप लिखते हैं या कहीं लिखा हुआ पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हुए आपको क्लियर नहीं होता कि ये वर्ड यहाँ पे क्यों है, मिसप्लेस्ड है. अक्सर सेंटेंसेस में आप ऐसे वर्ड्स पढ़ लेते हैं जिनको वहां पे नहीं होना चाहिए, या वहां पे किसी और वर्ड को होना चाहिए. तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो हम उसे नाम देते हैं इनकंसिस्टेंसी. ये आपस में कोई रब्त ही नहीं है, कोई सीक्वेंस ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अब ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल. आप पहली एग्जाम्पल देखें, आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स, मैम रोज एंड गॉड. थोड़ी देर फिर सोचेंगे क्या कहा गया है, क्योंकि हम लोग जब अंग्रेजी पढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा अपने कंपाइलर को, अपने इंटरप्रेटर को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि पता नहीं क्या कहा गया है, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, सेकंड भी नहीं है, और कई लोगों के लिए वो थर्ड भी नहीं है. पहली लैंग्वेज उनके लिए मकामी जुबान है, कोई पंजाबी या सराइकी या पुख्तो या कोई भिंदको या बलोची या सिंधी. और इवन जिन लोगों की मादरी जबान उर्दू है, उनमें भी एक्सेंट वाइज डिफरेंस है. कराची वालों की उर्दू और लाहौर में जो उर्दू बोलने वाले उनकी उर्दू. जो लोग इंडिया से आए हैं उनमें वो उर्दू बोलने वाले जो हैदराबाद दक्कन के हैं, और वो डिफरेंट हैं जो कि यूपी से आए हैं, अपर प्रोविंस से. जो बिहार से आए हैं उनकी एक्सेंट, बोलते तो उर्दू ही है, वो भी डिफरेंट है. आपस में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की उर्दू एग्री नहीं होती. जो लोग लखनऊ से आए हैं, और फिर उससे भी आगे आप चले जाएं कलकत्ता, वहां भी उर्दू बोलने वाले. तो हर एक की एक्सेंट डिफरेंट है. हमारे अपने मुल्क में जो लोग लाहौर में उर्दू बोलने वाले हैं, यानी जो मकामी नहीं है,
मकामी तो सारे ही हो गए, लेकिन वो पैदाइशी तौर पे मकामी नहीं है। तो उनकी उर्दू जो यहाँ बोली जाती है, अक्सर आप देख लें रेलवे के मुलाजमीन उर्दू स्पीकिंग बहुत हैं, वापडा में हैं, यानी सरकारी मुलाजमों में। तो वो उनकी उर्दू कराची वालों की उर्दू से बहुत ही डिफरेंट है, और जो कराची के लोग हैं उनकी उर्दू मुंबई वाले लोगों की उर्दू से डिफरेंट है। इवन के एक ही लैंग्वेज में भी एक्सेंट्स, प्रोनाउंसिएशंस और एक्सप्रेशंस का डिफरेंस है, जो शायद एक जगह के लोग दूसरी जगह के लोगों के लिखे हुए जुमले या बोले हुए जुमलों को इनकंसिस्टेंट समझें। तो जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं वो तो बिल्कुल ही इंटायरली एक बहुत बड़ा कलमिया बन सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल है, आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स, मैम रोज एंड गॉड, ये किसी को भी शायद जो इंग्लिश लिखने पढ़ने वाले शायद उनको भी कंफ्यूज करते हैं। अब थोड़ी देर के लिए आप सोचें क्या कहा जा रहा है। आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स, मैम रोज एंड गॉड। अब इब्तदाई तौर पे यूं शख्स पढ़ रहा है कि जनाब मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँ, जिस तरह ये कोई किसी को इनाम या अवार्ड्स देने की कोई तकरीब में कोई तकरीर करता है कि जी भाई थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, तो वो कुछ जज्बाती अंदाज में कहना चाह रहा है कि जी मैं तो थैंक यू कहना चाहता हूँ माय पेरेंट्स को। फिर उसके बाद वो कहता है जी मैम रोज एंड गॉड, तो क्या इसका ये मतलब है कि उसके पेरेंट्स के नाम है मैम रोज और गॉड? ब्लास्फेमी सी हो गई है थोड़ी सी। माय पेरेंट्स, मैम रोज एंड गॉड, ये एक अजीब कंफ्यूजन पैदा कर देगा। बोलने वाले का मकसद क्लियर है, उसको तो बहुत क्लियर है वो क्या कहना चाह रहा है। सुनने वाला जो है या पढ़ने वाला वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो इसी चीज की इनकंसिस्टेंसी, अब ये जो कॉमा प्लेस हुआ है माय पेरेंट्स के बाद, शायद अगर किसी को किसी और जगह होता या इसकी जगह कोई और वर्ड ऐड किया गया होता। इनकंसिस्टेंसी का यही मतलब है कि जी कोई वर्ड जहां लिखा जाना चाहिए था, एंड इवन के कोई पंक्चुएशन मार्क कहीं लिखा जाना चाहिए था वहां नहीं लिखा हुआ, या जहां नहीं होना चाहिए था वहां लिखा हुआ है। और ये भी हो सकता है कि एक या दो वर्ड्स कहीं लिखे जाने थे नहीं लिखे गए, तो मीनिंग कुछ का कुछ बन गया। अब आई बिलीव जो कहना चाह रहा है वो तो ये है कि आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आई वुड लाइक टू थैंक मैडम रोज, टीचर का नाम हो सकता है ये, एंड आई लाइक टू थैंक गॉड। ये तीन मुख्तलिफ पार्टीज हैं, लेकिन जिस तरीके से इनको यहाँ लिखा हुआ है उससे तो ये शक पड़ रहा है कि जी दो पार्टीज हैं। आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स, तो दो हैं, एक तो पेरेंट्स में मिस्टर मैम रोज है, मैडम रोज किसी खातून टीचर का नाम, और एक गॉड। आप उस तरह से भी इसको नहीं सोच सकते। अब इस इनकंसिस्टेंसी को कैसे आप रिमूव कर सकते हैं? आप ये कह सकते हैं आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स एंड आई वुड लाइक टू थैंक मैडम रोज एंड अबव ऑल आई वुड लाइक टू थैंक गॉड। यानी कुछ लफ्ज हैं जो मिस हो गए हैं, वो आप इसमें डाल दें तो वो इनकंसिस्टेंसी रिमूव हो जाएगी, जिसकी वजह से जो एम्बिग्विटी है, मिसकम्युनिकेशन है, वो रिमूव हो जाएगी। और इट हैपेंस अक्सर आप लोगों के लिखे हुए जो आंसर्स हैं, ऑफ कोर्स उनमें आप इस तरह की तो नहीं, लेकिन जरा डिफरेंट किस्म की मिस्टेक्स लोग करते हैं। लाइक अगर उनसे पूछा गया है कि आपके सामने जो आइटम्स लिखे हुए हैं ये क्या है, तो लोग इंफॉर्मेशन कह देते हैं जबकि वो डेटा होगा, या डेटा कह देते हैं जबकि वो इंफॉर्मेशन होगा। सिंपल सी एक एग्जांपल से अब देखें, प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप अपने सब्जेक्ट की चीजों में इनकंसिस्टेंसी कर देते हैं या एम्बिग्विटी ले आते हैं, पढ़ने वाले को क्या शक होता है? पढ़ने वाले को ये शक होता है कि जी ये इसको आता ही कुछ नहीं है। अगर इसको आता, कुछ समझ आती, तो उस तरीके से लिखता ना जिस तरीके से इस सब्जेक्ट में लिखा जाना चाहिए। अब जिस तरह मैं आपको मिसाल वही देता हूँ, मैंने आपको शुरू में 3 लेक्चर्स में मुसलसल रिपीट करके बताया कि प्राइवेसी क्या चीज है। मैंने आपको बताया जी प्राइवेसी इट्स बाउंड टू बी वायलेटेड।
और प्राइवेसी उन्हीं ही चीजों की होती है जिनकी वायलेशन हो सकती हो। उन चीजों की प्राइवेसी होती है जो कि सामने मौजूद। जो चीजें सामने मौजूद नहीं है, ताले में पर्दे में रख दी गई हैं, उनकी प्राइवेसी नहीं होती, बल्कि वो कोई और एक इशू, कंटेम्प्रेरी इशू में गिनी जाती हैं। वो होती हैं सेफ्टी में या सिक्योरिटी में। लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं वो एम्बिग्विटी पैदा कर देते हैं जनाब के जी, सिक्योरिटी को प्राइवेसी बना देते हैं मिसप्लेस्ड, और प्राइवेसी को सेफ्टी या सिक्योरिटी बना देते हैं मिसप्लेस्ड। इस लिहाज से आप लोगों को जरा खास तौर पे अब देखें, अगर मैं इतना कुछ बताने के बाद पेपर चेक करूं और फिर वही चीज सामने आए जो कि अनपढ़ लेमैन की है, तो फिर आपको कोई नंबर देगा? इस तरह से कोई मार्क्स मिलेंगे आपको? हैव टू थिंक ऑन दैट। और जुमला है जनाब, आई एम सॉरी आई लव यू, और यूं लग रहा है जैसे मुझे बड़ा ही अफसोस है, पता नहीं मैं क्यों आपसे मोहब्बत रखता हूँ। आई एम सॉरी आई लव यू, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। हमें कोई ऐसा तरीका करना पड़ेगा वो कंसिस्टेंसी आ जाए। और वो ये हो सकता है कि आप कह दें आई एम सॉरी कॉमा आई लव यू। इसका मतलब है जी मैं माजरत खाऊं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं तो आपसे मोहब्बत करता हूँ, आई लाइक यू। फिर एक एग्जांपल और, आई लव बेकिंग माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स। अब जिस शख्स ने बहुत कम अंग्रेजी पढ़ी है वो तो फौरन फैसला दे देगा कि जी ये जो शख्स है उसे बहुत पसंद है अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बेक कर देना। कितना बुरा काम। बेकिंग का मतलब होता है वो जो अवन में केक्स या ब्रेड या पिज्जा वगैरह जो है वो कुक करते हैं, उसको बेकिंग कहते हैं। अब वो पता नहीं क्या कहना चाह रहा था, जो हम समझे वो तो यही है कि जी आई लव बेकिंग माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स, तो जब भी मौका मिलता है मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बेक कर देता हूँ। एक्चुअली इस तरह नहीं है। जिस मुल्क की जबान में ये बात लिखी गई है वहां पे इसका मतलब कुछ और लिया जाएगा। वो मतलब ये लिया जाएगा कि जी आई लव बेकिंग फॉर माय फैमिली एंड फॉर माय फ्रेंड्स। आप अगर वो एक वर्ड ऐसा ऐड कर दें जो बात को क्लियर कर दे, आई लव बेकिंग फॉर माय फ्रेंड्स, फॉर माय फैमिली। अब इसी तरीके से दे आर सम बिगर एग्जांपल्स। एक सिनेरियो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। सिनेरियो वन, इसमें बड़ी जल्दी से एक स्टोरी कन्वे जो हो रही है, तो आपको जरा तेजी से इसको पढ़ना और समझना है। इफ यू हैव टाइम, ट्राई टू mow the lawn this afternoon, said the father as he walked out the door to go to his office. His teenage son head down, concentrating on the breakfast. Grumps in reply, एक एक्सप्रेशन, क्योंकि उसके मुंह में तो खाना है ना, कोई सीरियल्स खा रहा है या ब्रेकफास्ट खा रहा है, तो वो हम बोल नहीं सकता, लेकिन वो ग्रंट सा एक सब कर सकता है। जिस तरह लोग हमारे यहाँ भी पान चबा रहे होते हैं और बोलते नहीं, तो करके बेमानी से लफ्जों से वो मीनिंग कन्वे करते हैं। तो सिनेरियो ये है कि जी एक आदमी अपने घर से निकलते वक्त उसने अपने बेटे को, जो कि नाश्ता कर रहा था, उसे उसने कहा इफ यू हैव टाइम ट्राई टू mow the lawn this afternoon, यानी अगर तुम्हारे पास वक्त है बच्चे, तो तुमने दोपहर तक या दोपहर तक लॉन में घास उगी हुई है वो काटनी है उस मशीन के जरिए, लॉन मोवर के जरिए। बड़ी सिंपल सी बात, लेकिन अब इसमें कोई गलती हो गई है। वो कैसे अभी पता चल जाएगा। टू द फादर्स डिस्मे, द यार्ड रिमेन्ड अनटच्ड व्हेन ही रिटर्न्ड होम। The son, when confronted by his angry father, excused his lack of action with the explanation, "You said if I had time, and I was not here. I was at the mall all the day." यानी ये हुआ कि जब वो बाप ये कह के गया, फिर शाम को जब वो वापस आया, उसने देखा जनाब कि लॉन तो उसी तरह उसमें तो कोई घास नहीं काटी गई। और वो गुस्सा तो उसको आना था कि जी जब मैं कह के गया हूँ बेटे को, और बेटा फारिग हो गया ये कह के। His angry father, he confronted his angry father and said,
You said if I had time. यानी अब्बा जी आपने तो ये कहा था कि अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं लॉन की घास काट दूं, तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं था जनाब, बिकॉज आई वॉज एट द मॉल, मैं मॉल घूमता फिर रहा था आवारागर्दी अपने यार दोस्तों के साथ, तो मेरे पास तो टाइम नहीं था। आपने तो कहा था इफ यू हैड टाइम, तो मेरे पास तो कोई टाइम ही नहीं था। तो गड़बड़ क्या हुई? क्या गड़बड़ हुई? गड़बड़ हुई। गड़बड़ ये हुई कि जो बाप है वो जो तवक्को रखता था वो पूरी तरह कन्वे नहीं कर सका अपने बेटे को। अब बेटे की गलती हो या ना हो, उसने तो बाप के कहे लफ्जों को ही इंफॉर्मेशन समझा जी इफ यू हैड टाइम। तो उसने सोचा कि जी मेरे पास तो टाइम नहीं होता, मैं तो खेलना है, कहीं इधर जाना है, उधर जाना है। तो गलती डैड की है जिसने प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं की, या तो फिर सब्र करे, लेकिन अगर वो सब्र नहीं कर सकता तो उसको सोचना चाहिए कि उसे असल में उसने गलती क्या की है। उसने गलती ये की है कि उसने कम्युनिकेशन गलत की है। अब वो जो दूसरा सिनेरियो है वो उस गलती का रेमेडी बता रहा है कि होना क्या चाहिए था। होना ये चाहिए था, सिनेरियो टू, माइक, माइक उस बेटे का नाम है और उसका जो फादर है वो उसको कह रहा है, माइक, said the father, addressing his son as he walked out of the door for work. The father paused, waiting for the teenager to raise his eyes from the cereal he was gulping down. यानी वो जो सीरियल खा रहा था, कॉर्नफ्लेक्स टाइप नाश्ते में जो खाते हैं, वो खाते हुए अब बाप ने पहले बेटे को बुलाया, माइक, उसका नाम लिया उसने, और फिर उसने इंतजार किया कि जी, एक गैप उसने दिया। अब वो बेटा समझ रहा होगा कि जी बाप ने बुलाया है तो कुछ कहना चाह रहा है, तो वो नाश्ते से उसकी तवज्जो फिर बाप की तरफ हुई। Waiting for the teenager to raise his eyes from the cereal he was gulping down, उसने उसको कहा, look here, we are going out of town this weekend. So you need to mow the lawn today. Any problem with that? किस तरह वाजे तरीके से उसने बात कन्वे की है, देख बेटा, आज शाम को हमने शहर से बाहर किसी वीकेंड के लिए जाना है, कोई पिकनिक के लिए या कहीं पे कोई किसी पहाड़ी इलाके, whatever, कोई वीकेंड गुजारने के लिए वहां से जाना है। तो जरूरी है कि जाने से पहले कोई शख्स जो है घर के लॉन की कटाई कर दे। तो उसने अपने बेटे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, वी आर गोइंग आउट ऑफ दिस टाउन वीकेंड, सो यू नीड टू मॉ द लॉन टुडे, सो यू नीड टू मॉ द लॉन, यानी उसने एम्फसाइज किया इस पे कि जी यू नीड टू मॉ द लॉन। एनी प्रॉब्लम विद दैट? यानी अगर तुम्हें कोई मसला नजर आ रहा है, कोई और, अभी बता दो। दिस इज वन वे ऑफ फिक्सिंग द वर्ड्स, फिक्सिंग योर कमांडमेंट। आप जिस तरह से कमांड किसी को कर रहे हैं या कोई कंफर्मेशन को दे रहे हैं, उसको देने का एक तरीका है। वो अनलाइक के जी इफ यू हैव टाइम ट्राई टू मॉव, यानी कोशिश करना यार बेटा, अगर तुम्हारे पास टाइम हुआ, तो उसने कहाँ पे उसको लिफ्ट करानी है। आज का दौर है लेकिन आज के दौर में भी बाप अपने बेटे को कंफर्म तरीके से, तो भाई सीधी सी बात है, तुमने ये काम करना है, अगर कोई मसला है तो अभी बताओ, ताकि शाम को मुझे कोई मायूसी ना हो कि जी घास ही नहीं कटी हुई। तो अब बेटे ने भी फिर उसी तरह रिटेलिएट करना है, उसकी गॉट द मैसेज। बेटा ने कहा, जनाब नो सर, आई वाज गोइंग टू द मॉल। ये नहीं, वो जो उसने क्वेश्चन पूछा है ना, एनी प्रॉब्लम विद दैट, उसका आंसर उसने दिया है, नो सर, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आई वाज गोइंग टू द मॉल विद टेड एंड जिम, यानी मैं अपने दोस्तों के साथ मॉल जाना था मैंने, लेकिन आई थिंक इट कैन बी डन बिफोर आई लीव, यानी मेरे जाने से पहले मेरे पास इतना टाइम होगा कि जी मैं लॉन की कटाई कर सकता हूँ। दैट मीन्स कि जिस तरीके से कंफर्म एक मैसेज कन्वे किया उसके बाद ने, कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन नहीं हुई। तो अब उसने उस कम्युनिकेशन को समझा और उसने भी एक प्रॉपर कम्युनिकेशन दी कि देखें जी, अगरचे मैंने एक मसरूफियत थी मेरी, लेकिन चूंकि आपने कहा है इस तरीके से कि जी हमने वीकेंड पे जाना है, तो अब फिर मेरी जिम्मेदारी, आई डू इट। मैं मॉल भी चला जाऊंगा बाद में, लेकिन उससे पहले आई डू दी वर्क जो भी आप कह रहे हैं।
और फिर आगे आप देखें उसका रिस्पॉन्स गुड, या उसने कहा जी ग्रेट, आई अप्रिशिएट इट, सी यू टुनाइट। लेकिन उसने जाते जाते कह दिया कि जी ठीक है तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन शाम को फिर मैं आके चेक करूंगा, सी यू टुनाइट। मतलब ही इसका ये है कि जी मैं आके पूछूंगा जी क्या किया तुमने। Said the father heading out of the door, the lawn was moved and edged। यानी जब शाम को वो वापस आया तो वाकई उसकी लॉन की उसने ज़ाहिर बेटे ने की है, माइक ने। एंड एज्ड एंड द फैमिली हैड अ नॉन इवेंटफुल इवनिंग, यानी फैमिली ने फिर अपने वीकेंड को पूरी तरह एंजॉय किया, ना किसी से कोई शिकायत थी ना कोई और। तो आपने इन दोनों सिनेरियोस को देखना है कि किस सिनेरियो में कम्युनिकेशन सही हो रही है, मिसकम्युनिकेशन नहीं हो रही। कहो ना बेटा अगर टाइम मिला तो कर दोगे ना, उसने कहा अब का कुछ भी मतलब हो सकता है। और इस तरफ मिसकम्युनिकेशन नहीं है, वाज़ेह अल्फाज है जी माइक तुमने ये काम करना है, अगर नहीं करना तो अभी बता दो। अब वजह ये है कि जी इस वजह से ये होना चाहिए, तो माइक ने ठीक है एक्सेप्ट किया। यानी जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होती है वो लोग सुनने पे मजबूर भी होते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये एग्जांपल्स मैं आपके अपने पढ़ने के लिए छोड़ देता हूँ। और होगा ये कि नेक्स्ट टाइम हमें एक और इंटरेक्टिव सेशन करना है, तो उसके लिए मैं आपको कमिट करना चाह रहा हूँ, आप लोग सैटरडे या संडे को आई अपलोड द टाइम, तो एक इंटरेक्टिव सेशन मैं आपके लिए चलाऊंगा जो कि इस वीक में एक्स्ट्रा होगा लेकिन जरूरी है। उस इंटरेक्टिव सेशन में हम बाकी की एग्जांपल्स एक दो हैं उनको कवर करेंगे, और ये भी देखेंगे कि ठीक है जी मिसकम्युनिकेशन होती है, एम्बिग्विटीज होती हैं, इनकंसिस्टेंसीज होती हैं, तो अब उनसे कैसे जान छुड़ाई जाए। क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है, मेरा ऑब्जेक्टिव है इनफैक्ट, कि मैं चाहूंगा कि आप जब मेरे प्रोफेशनल प्रैक्टिस के क्वेश्चंस के आंसर्स लिखें तो आप कतई तौर पे रटे वाले ना लिखें। इसीलिए मैंने डेफिनेशंस नहीं पूछी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं या कर रहा था मिड में कि आप अपनी वर्डिंग में अपने अंदर जो बात है वो लिखेंगे, चाहे उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ग्रामर की मिस्टेक्स हैं, उनको भी हम देख लेंगे, उनको भी रिमूव करने सीख लेंगे। लेकिन जो बात आप कहें वो अपने जहन से तो कहें। ये एक्सप्रिशिएबल नहीं है कि आप एक क्वेश्चन के आंसर में नेट से इररेलेवेंट टेक्स्ट पकड़ के कॉपी पेस्ट कर दें। यानी सवाल कुछ पूछा गया, जवाब कुछ और आ रहा है। अब ये भी तो एक तरह की एम्बिग्विटी है, एक इनकंसिस्टेंसी है। तो इंशाल्लाह ये लेक्चर्स जो है इंटरएक्टिव सेशन में जो डिस्कशन हम कर रहे हैं ये कवर हो जाएंगे, तो यू विल बी एबल टू टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बीइंग स्पेसिफिक एंड से गुड बाय टू द लेमैन इनसाइड यू। प्रोफेशनल्स और लेमैन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपने प्रोफेशन की चीजें जानते हैं और उनके मुतालिक बोल सकते हैं। जो लेमैन है उन्हें किसी भी प्रोफेशन की कोई चीज नहीं है, तो आप लेमैन नहीं है, आप प्रोफेशनल हैं। आपसे अगर इस प्रोफेशन के मुतालिक मैं कोई चीज पूछूंगा और खास तौर पे वो चीज जो पढ़ा दी हुई है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप प्रोफेशनल अंदाज में उसका आंसर दें। तो अब आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चंस हों, एनीबॉडी विद अ क्वेश्चन? वाटर। जी, एनीबॉडी विद अ क्वेश्चन? साद आपका कोई सवाल नहीं आया, ना ही साकिब का कोई सवाल आया। लेक्चर आपने प्रॉपरली सुना भी है कि नहीं? यस सर। तो कुछ सवाल, बल्कि मैंने जो सवाल पूछे उनके भी कोई जवाब नहीं आप लोगों ने दिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसमें इंटरेस्ट लूज कर गए? नहीं सर, वो नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था बीच में, इस वजह से। नेट पे क्या प्रॉब्लम आ सकता है?
बहरहाल अब जिस तरह भी है, आपने जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो भी देख ली हैं, और इस इंटरैक्टिव सेशन की भी वीडियो आपके लिए आ जाएगी। अभी भी आपने अटेंड किया इसको, और स्लाइड्स भी मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोगों के लिए फिर ये जरूरी है कि इनको पढ़ें, समझें, और उससे ज्यादा जरूरी ये होगा कि आपने एग्जाम में अब इसी तरीके से आंसर्स लिखने हैं, स्पेसिफिक। जी साद, आपका क्वेश्चन क्या है? आपके पास माइक्रोफोन नहीं है तो माइक्रोफोन को सही करें ना। अब मैं मुसलसल जरूरत होगी, आप अपने सेल फोन्स पे या कंप्यूटर्स पे इन चीजों को आप सही करें, अपने माइक्रोफोन और अपने कैमरास को सही करें, वरना तो समझ लें कि ब्लाइंडेड ही रहेंगे। जी मैं छुट्टियों के मतलब अभी कुछ नहीं कह सकता कि जी कौन सी छुट्टियां हैं, कौन सी डेट शीट वगैरह। अभी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैं आपसे शेयर कर सकूं, लेकिन अनकरीब डेट शीट भी आ जाएगी, फिर हमें पता चल जाएगा कि किस डेट को एग्जाम होना है, ताकि उससे पहले हम इस डिस्कशन को वाइंड अप कर दें। सर क्विज होगा आज के? नहीं जी, आज नहीं होगा, लेकिन एक असाइनमेंट आपके लिए मैंने अपलोड की हुई थी, वो आपने बना ली होगी। ओके देन, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको अपलोड कर दूंगा डेट के जी कब हमारी डिस्कशन होनी है इंटरैक्टिव सेशन के नाम से। उसके लिए आप रेडी रहिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। टेक केयर एवरीबॉडी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।